Uh, Sam and Abdullah, thank you for joining here as well. Thoda say we are having some audience from diverse background as well. Like I'm seeing 5 to 7 audiences are from like geography or from biotech as well. So if you could share like a generic way for a couple of minutes for them as well कि उनके लिए क्या scope है इसमें या थोड़ा सा तो फिर हम question answer इसके बाद start करें. Yes, I would like to talk about the geological field. Basically, for my master's, I have talked about I am pursuing the master's in environmental engineering and hydrogeology. It's a course in TU Darmstadt, and most of the participants in this course are from the geological background. They are geologists or they are civil engineers, and there are 3 or 4 persons that are from environmental engineering background. So for the geologist, if you want to pursue some course on the scholarship at TU Darmstadt, Germany, I will suggest you to check the trophy, TROPHEE, trophy course on TU Darmstadt. And yes, it's a funded course by DAAD, but for this year, it's not on the list, but funding is also available for this year. It's not on the list of DAAD EPUS program because it's in accreditation process. When a course is in accreditation process, they can't put it on the list. So this means if it is not on a list, the chances to get here on scholarship is more because there will be less applicants applying for the scholarship in the trophy program. So it's a golden opportunity for the geologist if you want to come to Germany on trophy course, that is tropical hydrogeology and environmental engineering at TU Darmstadt. You can apply on a scholarship here. And if you need guidance on this specific course, I will write my email address in the chat. You can send me an email. Thank you, Sam. And Okay. a few things about, okay, Abdullah, and while Abdullah, you Yeah. are responding to my earlier request, kindly include biotech students as well. We are having some biotech students over here as well. Like, are biotech students sort of eligible for wastewater treatment, like microbiological treatments or biogas production? So I think you could, if you could highlight the nexus of environmental engineering or sciences along with biotechnology, like the course are interdisciplinary or something like that. एक्चुअली लास्ट उसमें मैं आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट कि हुसैन वो जो लास्ट टाइम आपने लास्ट मीटिंग में पीडीएफ शेयर की थी जिसमें कोर्सेज हैं वो काइंडली दोबारा उसका लिंक भेज दें उसमें एक्चुअली क्योंकि जो है एज ए सेट कि स्कॉलरशिप के ऊपर कोर्सेज लिमिटेड है उसमें ज़्यादातर एनवायरनमेंट के ही हैं उसमें एनवायरमेंटल साइंसेस के ज़रूर हैं इंजीनियरिंग के ज़रूर है एनर्जी के ज़रूर है लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के देयर फ्यू कोर्सेज उसमें एग्रीकल्चर के भी कोर्सेज हैं और मेरीन का भी मैं भी देख रहा था एक क्वेश्चन आया था कि उसके मेरे ख्याल से सिर्फ 1 या 2 कोर्सेज हैं तो हाँ स्कॉलरशिप उसमें लेकिन आप बिल्कुल डेफिनेटली डार्ट तो ऑफर क्योंकि ये स्पेसिफिक है उसके लिए डेवलप कंट्रीज के लिए तो क्योंकि इसमें कोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो हाँ उसमें ऑनेस्टली इतने ज़्यादा कोर्सेज नहीं हैं लेकिन हैं देयर आर फ्यू क्योंकि अगर फ्यू कोर्सेज हैं तो उसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ये सॉरी मैं लास्ट सेशन में बताना भूल गया था कि एक कोर्स में हर साल एक बंदा पाकिस्तान से आएगा मतलब आई हैवंट सीन कि कभी ऐसा हुआ हो कि एक बैच में 2 स्कॉलरशिप होल्डर्स आए हो सेम प्रोग्राम में और समटाइम्स इवन ऐसा होता है कि पाकिस्तान से कोई भी नहीं आता तो हाँ अब उन्होंने एक लिमिटेड सीट्स हैं तो उस लिहाज से कोर्सेज
ऊपर से कोर्सेज भी लिमिटेड हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट विदाउट स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं। मरीन के ऊपर भी हैं, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर भी हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के ज़्यादातर कोर्सेज मैंने जर्मन में देखे हैं, लेकिन इंग्लिश में भी हैं। सच एज मेरी यूनिवर्सिटी मेरी सिटी में म्यूनिक में, तो म्यूनिक में ही एक यूनिवर्सिटी है LMU, लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी। उसमें कोर्सेज हैं बायोटेक्नोलॉजी के, तो वो भी डार्ट DAAD.DE, उसकी मैंने शुरू में बताया था कि आपने फिल्टर्स लगा के उसमें सर्च कर लें, लेकिन स्कॉलरशिप में ऑनेस्टली दे आर नॉट दैट मच कोर्सेज फॉर बायोटेक्नोलॉजी। अब्दुल्ला, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कोर्स हमने देखा, या बायोगैस के ऊपर कोर्स है, या वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर कोर्स है, तो उसमें बायोटेक में जिसने बायोगैस पे रिसर्च करी है, या रिन्यूएबल एनर्जी में जिसने कोई बायोगैस या वेस्ट टू एनर्जी और समथिंग बायोफ्यूल बनाया है, ठीक है, वेस्ट टू बायोडीजल बनाया है, ट्रांसस्टरिफिकेशन है, सिमिलरली इस तरह से एक इंटरडिसिप्लिनरी करके वो अपने आप को अलाइन करके इन कोर्सेज में तो आ सकता है मेरे ख्याल से। डेफिनेटली उसमें बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, इस पे बल्कि थोड़ा जो सा काइंडली बताइएगा जरा। हाँ डेफिनेटली वो बल्कि एक स्पेसिफिक कोर्स है एनवायरनमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट। उसमें उन्होंने बैचलर्स रिक्वायर्ड होता है नेचुरल साइंसेस की स्टडी से। तो हाँ उसमें इसके अलावा इसके एनर्जी एंड एनवायरनमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट के अलावा भी कोर्सेज हैं, 4-5 कोर्सेज हैं। वो आपकी कोर फील्ड से रिलेटेड मे भी ना हो, लेकिन आप उसमें अप्लाई जरूर कर सकते हैं अगर आप कन्विंस कर सकते हैं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, मोटिवेशन लेटर में इस तरह कर दें, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड है, तो बिल्कुल उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वो लिस्ट हुसैन ने आई थिंक से शेयर कर दी है, वो उसमें सारे कोर्सेज हैं, और उनकी बेसिस के ऊपर कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिन पे आपका मेरीन स्टडीज का भी बैकग्राउंड इट वुड वर्क। तो बिल्कुल ऐसा है, अपॉर्चुनिटीज आर देयर। थैंक यू बिल्कुल अब्दुल्ला जी। मैंने लिस्ट शेयर कर दी है। देयर इज क्वेश्चन दैट के पब्लिक हेल्थ के ऊपर कोर्सेज हैं, बिल्कुल पब्लिक हेल्थ पे, इंटरनेशनल हेल्थ पे, अर्बन हेल्थ पे 3 कोर्सेज हैं। जो लिस्ट मैंने शेयर की है उसमें एक हेडिंग है पब्लिक हेल्थ की, आप उस पर चेक कर सकते हैं। जी तो मेरे ख्याल से अब हम थैंक यू सो मच, अब क्वेश्चन एंड आंसर कुछ जो ऑडियंस के हमारे हैं वो ले लेते हैं। और इसमें अब्दुल्ला, वी आर हैविंग environmental sciences, mainly environmental sciences student from Government College University Lahore, and environmental engineering graduate students and alumni from our IESC family as well, and some of them are from diverse background. Few of them are having from we are having some from biotech or something like that. सो माशाल्लाह से डाइवर्स ऑडियंस, और आई होपफुल कि ये जो आपका मैसेज है, जो आपकी गाइडेंस है, ये आगे भी इंशाल्लाह ट्रैवल करेगी इन 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 स्कूल्स में। सो जी क्वेश्चन एंड आंसर लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन इज फ्रॉम अली एंड देन फॉलोड बाय सिद्रा भट्ट। मैंने एक देखा है क्वेश्चन, अली ने क्वेश्चन किया हुआ है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ऑनेस्टली मास्टर्स के ऊपर कोई कोर्स नहीं है, एक भी नहीं है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ऑनेस्टली कोर्स नहीं है। PhD सेकंड क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि प्लीज टेल अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स PhD में देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एक्चुअली मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक होता है क्या है कि जैसे आप ज्यादा फर्दर स्टडीज की तरफ जाते जाते हैं, हायर स्टडीज की तरफ जाते जाते हैं, तो it becomes a bit easier to score the scholarship. मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है इन मामलों में, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, कि बैचलर्स में स्कॉलरशिप सिक्योर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, मास्टर्स में उससे आसान होता है और PhD में उससे ज्यादा आसान होता है। तो PhD में यस स्कॉलरशिप्स हैं, और उसमें अच्छा डार्ट में अगर आपने PhD के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करना है ना, तो दैट्स अ बिट डिफरेंट। उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें डार्ट का पहले कोई लेना देना नहीं होता। आप सबसे पहले इनिशियली प्रोफेसर को लिखते हैं जो PhD ऑफर कर रहा है, अगर तो उसके पास फंडिंग होती है वो आपको फंडिंग दे देता है, वो कहता है ठीक है मैं अगर उसके पास फंडिंग नहीं होती, उसके पास सिर्फ एक टॉपिक होता है PhD करने का, तो आप उसके साथ PhD ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर आप डार्ट को अलहदा से लिखते हैं, उसे डार्ट को बताते हैं, और वो अराउंड द ईयर होती है। इसमें आपको कोई स्पेसिफिक कोई नहीं होता कि आपने दिस टाइम, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई
है नहीं कि जी दिस टाइम ऑफ द ईयर आपने एप्लीकेशन डालनी है, वो अराउंड द ईयर है, किसी भी टाइम आप डाल सकते हैं एप्लीकेशन डार्ट को, उसमें बता दें कि जी मुझे इस तरह रिसर्च ग्रांट चाहिए और मैं इस तरह करना चाह रहा हूँ, और फिर वो आपको, अगर आपके एप्लीकेशन आपके इंटरव्यूज होंगे, लेकिन उसमें मोस्टली प्रोफेसर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है ऑनेस्टली। डार्ट डोंट पे दैट मच वेल इन पीएचडी, मास्टर्स में वो बहुत अच्छा पे करते हैं एज कम्पेयर टू, क्योंकि मैंने जो देखा है यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं और कोई अदर अगर आपको इंस्टीट्यूट वो पे करते हैं, दे पे अराउंड 2500 यूरोस, जबकि डार्ड आपको पीएचडी में पे करता है अराउंड 1200 यूरोस। और यही अली का ही क्वेश्चन है कि व्हाट्स द स्टाइपेंड। स्टाइपेंड आपका इंश्योरेंस डाल के नॉर्मली फॉर मास्टर स्टडीज दैट इज 1000 यूरोस। और अगर अगर आपका खर्चा ज्यादा है, फॉर एग्जांपल आपका अपार्टमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है या किसी भी चीजों से, सो यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर द सब्सिडी, लेकिन दे आर मोर देन इनफ, आपके जितने भी वो पे करते हैं आपकी उनसे ज्यादा सेविंग हो जाती है। अब्दुल्ला, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। जिस तरह अब्दुल्ला ने बताया कि अगर आपका अपार्टमेंट महंगा है तो मोस्ट ऑफ यू विल थिंक कितना महंगा है, मतलब ये कंडीशन कब अप्लाई होगी कि महंगा है। अगर आप जो है 30% ऑफ योर स्टाइपेंड से ज़्यादा रेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब आपका जो है अबाउट 300 यूरोस कह लें, अगर आप रेंट पे लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा लगा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा जितने भी पैसे आप लगा रहे हैं उसमें से मोस्टली आपको वापस मिल जाते हैं। लाइक अगर आप 400 लगा रहे हैं तो आपको 100 यूरो वापस मिल जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली इसकी भी अपर लिमिट है, ये नहीं कि आप जाके 1000 यूरो का अपार्टमेंट ले लें और आप टीएडी को कहें जी मेरा अपार्टमेंट 1000 यूरो का है तो आप बाकी 700 यूरोस पर मंथ आप दे दें। उन्होंने इसकी भी एक लिमिट डिफाइन की हुई है कि यू कैन गेट मैक्सिमम 250 or 260 euro a month for a master student, and if you are married then you can get maximum for 50 euros a month in terms of scholarship subsidy for the rent. इन शॉर्ट जितने भी पैसे मिलते दे आर मोर देन इनफ, More than enough. या सेकंड क्वेश्चन मनीहा, कुछ फील्ड्स हैं जिसमें मेरे ख्याल से यू आर एलिजिबल एंड यू कैन अप्लाई। और मेरे ख्याल से सिद्रा का फिर क्वेश्चन है कि डज इंटर्नशिप्स एंड वॉलंटरी वर्क काउंट। यस डेफिनेटली इंटर्नशिप्स आपकी बिल्कुल काउंट करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि इंटर्नशिप्स क्योंकि कुछ अगर आपने फॉर एग्जांपल रिप्यूटेड इंटर्नशिप्स काउंट करती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है काम किस टाइप का। नॉर्मली क्योंकि अगर आप Abdullah, I सिंपल, would like to add please. इंटर्नशिप काउंट करती हैं आपकी डिग्री के बाद वाली, आपकी डिग्री के दरमियान वाली इंटर्नशिप नहीं काउंट करती। लाइक after 6 semester you are going for a 6 month internship, that will not count, but after finishing your degree you are doing an internship, that will count. Like after 8 semester study internship will count, before that internship will not count. It's a rule. और सिद्रा का ही क्वेश्चन है कि व्हाट आर चांसेस ऑफ Here सिलेक्शन फॉर अ सेकंड I'll मास्टर, offer सेम some चांस। clarification, Abdullah. Internship will count as a experience for this particular scenario. Otherwise, if you are doing internship within your degree, so it's really a good plus for your candidacy in various scholarship program. But here she is asking about the experience, whether internships are counted as experience or not. So, इसका आपने जवाब दिया। मैंने कहा कोई दूसरे स्टूडेंट सुन रहे हैं वो ये ना प्रोसीड करें कि इंटर्नशिप, वैसे ओवरऑल हम जेनेरिक बात कर रहे हैं इंटर्नशिप को। नहीं, इंटर्नशिप्स डेफिनेटली जो है बेहतर तो है ही है आपकी कैरियर के लिए, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि अगर आप प्रैक्टिकल फील्ड में काम करो तो आप ज्यादा चीजें लर्न करते हो, तो वो एट एनी स्टेज यस इट इज फ्रूटफुल, लेकिन हाँ एज अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो वो येट अगेन जैसे हमारे टाइम पर नस में एक इंटर्नशिप ऑफर हुई थी WWF के, WWF दैट इज जस्ट अबाउट लिसनिंग टू द लेक्चर्स। I mean that kind of internship won't count, लेकिन अगर आपने किसी एक्चुअल किसी कंपनी में काम, मतलब जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड आपने काम किया, वो डेफिनेटली अगर वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, चाहे वो वॉलंटरी है, चाहे वो इंटर्नशिप है, चाहे वो अनपेड है, कुछ भी है, अगर वो आपने काम किया हुआ तो डेफिनेटली दैट वुड काउंट एज अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। और सिद्रा का ही क्वेश्चन है कि चांसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर अ सेकंड मास्टर्स, सेम चांसेस, डजंट मैटर कि आप, बल्कि मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी
टॉपिक की, बट दैट रियली डजंट, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक मास्टर्स पाकिस्तान से किया एंड अगेन यू वांट टू अप्लाई फॉर अनदर मास्टर्स, तो डेफिनेटली चांसेस आर बेटर, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि पीएचडी के लिए अप्लाई करें, सेकंड मास्टर्स की क्या जरूरत है। और जियाउल इस्लाम का क्वेश्चन है कि आई एम डूइंग एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, GPA is 3.1, that's fine. How can I chances, यार ऑनेस्टली नहीं है मास्टर्स लेवल पर, पीएचडी के कोर्सेज हैं, और पीएचडी में तो डिपेंड्स कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है। अगर उसमें आपको सेपरेटली देखेंगे जो उसकी लिस्ट, मतलब जो भी आपको फॉर प्रोग्रामिंग आ जाती है उसमें पावर आ जाती है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसमें अगर आप उसको कन्विंस कर देते हैं प्रोफेसर को कि हाँ जी मैं इस चीज में, क्योंकि पीएचडी इज ऑल अबाउट रिसर्च, तो हाँ अगर आप उसमें आपको मिल जाता है तो फिर आपने डार्ट को सेपरेट बस एक एप्लीकेशन डालनी है पढ़ने की, लेकिन उसमें ज्यादातर पीएचडी के लिए प्रोफेसर के हाथ में ही होता है ईच एंड एवरीथिंग। तो हाँ मास्टर्स लेवल पे एज आई सेड कोई स्कॉलरशिप नहीं है। और हाउ जर्मनी इज बेटर, ये जो क्वेश्चन है, आई वुड से कि ये बंदे की पर्सनल उसके ऊपर होता है कि वो उसको किस चीज क्या अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ऑनेस्टली आई एम पर्सनली 100% सेटिस्फाइड, मुझे कंट्री बहुत ज्यादा पसंद है, और मेरे बहुत ज्यादा दोस्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यहाँ पे स्पेशली नास्ट में से भी हैं, और एक जीसी से भी है, लेकिन उसने कह इंटर जीसी से किया, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब्स में, जॉब्स देयर अ लॉट ऑफ, क्योंकि जाहिर है जर्मनी की इंडस्ट्रीज दे आर द बेस्ट। तो और अर्ली अब्दुल्ला का For प्लीज me, for there are me, for me, Abdullah, Germany का जो सबसे बड़ा questions in charm my है, inbox as well. Hussain, I would like to add something about Germany here. When I was finishing with my Yeah, masters, sure. so when you basically scroll and when you browse Europe's map, तो Germany Europe के center में आता है. So is it bordering with Switzerland or something like that. So for me एग्जैक्टली at that particular age, आपके लिए सबसे बड़ा चाम ये होता है कि आप 2 घंटों के अंदर ट्रेन लेके स्विट्जरलैंड चले जा रहे हैं और 2 घंटों के अंदर किधर जा रहे हैं. So that's the biggest charm of Germany that I had or I still have. So ये सबसे बड़ा चाम है मेरे लिए. ऐसे ही है बिकॉज क्योंकि आपको अगर जर्मनी या शेंजन स्टेट से आपको 20, अगर आपको एक वीजा मिल गया तो दैट इज फॉर 26 कंट्रीज, तो ऑनेस्टली बिल्कुल ऐसे ही है। और आप रात को मरी में लिटरली स्विट्जरलैंड इज जस्ट लाइक दैट, आपका प्लान बना है, आपने गाड़ी ली रही है रेंट पे, या अगर आपने ट्रेन का टिकट लिया और आप विद इन 2 आवर्स आप स्विट्जरलैंड में, तो बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा ही है। ओके जनाब, मैं यहाँ पे कुछ इनबॉक्स में क्वेश्चंस हैं जो प्राइवेटली रिसीव मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये कंपलसरी है कि हमने 3 कोर्स सिलेक्ट करने हैं और हमारे पास 3 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए? जो सिलेक्शन है वो आपको चॉइस मिलेगी कि आप कौन सी प्रेफरेंस में जाना चाहते हैं, आपको दोबारा भी चॉइस मिलेगी, तो इट्स नॉट योर फाइनल प्रेफरेंसेस। तो आप प्रेफरेंस देते हैं कि जी अगर इन्वायरमेंट के 3 कोर्सेज हैं तो मैं ये 3 सेलेक्ट करता हूँ या ये 2 सेलेक्ट करता हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके अलावा ये है कि 3 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। आई वुड से कि 2 एकेडमिक वाले, अगर 2 एकेडेमिया से है, उसके अलावा एक जॉब का है जिसपे आपके एम्प्लॉयर ने लिखा हुआ है कि आपकी डिग्री के बाद वो आपको दोबारा एम्प्लॉयमेंट के लिए कंसीडर कर लेगा या आपको आपकी जो पोजीशन है वो वापस मिल जाएगी। तो वो एक एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी है कि आपके पास लीव होनी चाहिए अपने एम्प्लॉयर से, और इस तरह का एक लेटर होना चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि आप वापस आके जॉब ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एम्प्लॉयड हैं। तो अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है तो इट्स नॉट कि जी किसी ना किसी से बनवाना है, आप इसके अलावा सिर्फ 2 जो है अपने एकेडमिक वाले रेफरेंसेस वो दे सकते हैं, दैट विल वर्क। और इसके अलावा
वालेकुम सलाम तला. Or is it too late? Yeah, I would like to give it back to Abdullah. Abdullah, please, you can answer now. एक क्वेश्चन आया है कि इज प्रोफेसर स्कॉलरशिप अवेलेबल इन जर्मनी? यस, फॉर पीएचडी अवेलेबल, फॉर मास्टर्स दे आर नॉट. और Ali का ही क्वेश्चन है, इज इट टू लेट टू अप्लाई फॉर पीएचडी फॉर फॉल 2020 टॉकिंग अबाउट प्रोफेसर फंडिंग? नहीं, पीएचडी के लिए तो एज आई सेड कि पीएचडी अराउंड द ईयर है. उसमें ऐसा जैसे मास्टर्स में और बैचलर्स में ऐसा होता है कि आपकी साल में 2 इनटेक होती है, एक समर की इनटेक होती है, एक विंटर की इनटेक होती है. पीएचडी में ऐसा नहीं होता. पीएचडी में आपकी अराउंड द ईयर, जब भी आपको आपकी एक्सेप्टेंस होगी, आप कभी भी उस टाइम ज्वाइन कर सकते हैं. इवन विद द प्रोफेसर फंडिंग इट्स द सेम. और आपको अगर, लेकिन हाँ, एक चीज जो कि प्रॉब्लम आपको पाकिस्तान में फेस करनी पड़ेगी, अगर आपको प्रोफेसर फंडिंग मिलती है और डार्ट फंडिंग नहीं मिलती, तो उसमें ये है कि आई डोंट नो, अगर क्योंकि पाकिस्तान में आप 2 जगह से वीजा अप्लाई कर सकते हो जर्मनी का, एक कराची से और दूसरा इस्लामाबाद से. तो कराची में सूरत हाल फिर भी बेहतर है, लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है. कि मैंने पहले भी बताया कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आप अभी अपॉइंटमेंट बुक करते हो स्टडी वीजा की, तो आपको अपॉइंटमेंट ही 1.5 साल बाद जाके मिलेगी टू अप्लाई फॉर द वीजा. और फिर वो एक सेपरेट थिंग है कि आपका वीजा लगे कि रिजेक्ट हो जाए, बट इन मोस्ट केसेस 90% ऑफ केसेस के अगर आपके जेन्युइन स्टडी है तो आपको वीजा लग जाता है. और उसमें अब अगर प्रोफेसर फंडिंग है तो वो आपको, वो एक टाइम पीरियड है, वो आपको वेट करना पड़ेगा. तो वो अगर इवन आपको 2020 में पीएचडी मिल जाती है तो आप उसको अप्लाई ही नहीं कर सकते. अब फिर अगर आप इफ यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद या अगर पंजाब की किसी साइड से हो, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप कराची जाके अप्लाई कर दो, क्योंकि वो डोमिसाइल अगर आपका पंजाब का है तो आपने पंजाब में ही अप्लाई करना है. आप कराची वो आपको केटर नहीं करेंगे. तो खैर, लेकिन फिर इसका यही हाल है, रेफरेंसेस नहीं चलते एम्बेसी में, बिल्कुल भी नहीं चलते. और आपको फिर यही है ऑप्शन कि आप किसी दूसरी कंट्री जाके, फॉर एग्जांपल जो आसपास कंट्रीज हैं, चाइना वाइना, जाके वहां से अप्लाई कर दें. खैर वो एक लॉन्ग प्रोसीजर है. लेकिन अगर आपको डार्ट की फंडिंग मिलती है तो डार्ट के लिए एक प्रिविलेज है कि आप एम्बेसी विदाउट अपॉइंटमेंट जाते हैं, क्योंकि डार्ट इज काइंड ऑफ जर्मन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप. तो ये आपके लिए एक प्रिविलेज है कि आपने बस एम्बेसी विदाउट अपॉइंटमेंट जाना है. तो हाँ, ये चीज़ें हैं. इसके अलावा मेरे पास तो और कोई क्वेश्चंस नहीं है एज सच. मेरे पास भी तो कोई क्वेश्चन नहीं है. अगर कोई participants kindly कोई अगर आपके questions हैं तो please shoot them away and ask them away. If there are some other yes, you can questions, just unmute and you can ask. Just unmute and yeah, ask. if you could unmute and we could ask as well even. मैंने अपना ईमेल भी शेयर कर रहा हूँ सबके साथ. अगर किसी को मतलब किसी भी किस्म की रिगार्डिंग स्टडी इन जर्मनी विद स्कॉलरशिप और विदाउट स्कॉलरशिप किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो आई एम 24/7 अवेलेबल. ये मैं आप लोगों को अपना ईमेल सेंड कर दिया है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. वालेकुम अस्सलाम. सर मैंने अभी क्वेश्चन किया था, लेकिन मैं अभी एमएस कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल पावर में. तो अभी मेरा कोर्स वर्क खत्म हो जाएगा तो मेरा रिसर्च स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स में है. तो मतलब मैं ये कह रहा था कि मैं इलेक्ट्रिकल मशीन किस चीज़ पे मैं फोकस दे दूं ताकि उससे मेरा प्रोफाइल भी बेहतर हो जाए और चांसेस भी इंक्रीज हो जाए. इसके हवाले से मैं पूछ रहा था. ठीक है अली, आप मुझे एक तो जो मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा है उस पर आप मुझे काइंडली एक ईमेल सेंड कर देना. मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा जो कि मेरे दोस्त हैं वो इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं. लेकिन जो उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने देखा कि पावर की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं इसमें. आई वुड सजेस्ट कि कुछ ऐसे, बल्कि मेरा अपना एक फ्रेंड है उसकी हायरिंग पाकिस्तान से, उसने डायरेक्ट जॉब अप्लाई की है और उसकी हायरिंग होगी इधर. इस तरह की कंपनीज हैं पावर में. जो अगर आप थीसिस का, हाँ, रिन्यूएबल्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है जर्मनी में. फॉर एग्जांपल विंड टर्बाइंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा काम हो रहा है. और अभी मेरा एक दोस्त है वो यूनिवर्सिटी ऑफ रॉस्टॉक है यहाँ पर,
और वो पावर में ही उसकी इलेक्ट्रिकल पावर में ही है, और उसकी अभी ही जस्ट बिफोर ग्रेजुएटिंग उसके पास 2 जॉब ऑफर्स थी और अभी उसके पास 3-4 जॉब ऑफर्स और आ गई हैं। तो जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी, क्योंकि अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, क्योंकि हेलो या मतलब किस जी अब्दुल्ला प्लीज एक कंटिन्यू। सेकेंड। जी अब्दुल्ला कंटिन्यू। अच्छा, उसमें आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, किस साइड पे इंटरेस्ट है, लेकिन अगर द गोल इज टू गेट द जॉब ना, तो आप हेलो डायरेक्ट कंपनीज हैं हेलो 50 हर जो भी बोल रहा है वी कैन हियर यू, बट जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं फिनिश कर लूं। खैर 50 हर्ट्ज है कंपनी, एनरकॉन है, जिसमें जो कि हायरिंग अभी इवन कोविड-19 में भी कर रही है, तो आप डायरेक्ट उसमें अप्लाई करो, देयर आर ऑप्शंस। बाकी हाँ, मुझे आप ईमेल जरूर भेज दो, मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा जो इस एक्चुअली कोर फील्ड के एक्सपर्ट हैं, एंड दे विल गाइड यू। दे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड दे विल हेल्प यू। जी यस यस, मेरे पास एक क्वेश्चन है इनबॉक्स में, जो ये है कि अगर आपको डार्ट की स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपके पास वीजा लेने के लिए आइल्स होना चाहिए? जी, अगर आपको तो मिल जाती है आइल्स की स्कॉलरशिप और डार्ट की स्कॉलरशिप, तो आइल्स आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी एक लेटर देगी आपके वीजा के लिए, और वो लेटर सफिशिएंट होता है आपका वीजा लगवाने के लिए। जी मिस अच्छा, मेरे अरूज। पास एक क्वेश्चन जी अरूज मेरे ख्याल है, से प्लीज थी। समवन हैव एवरेज जीपीए इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये बात मैंने शुरू में कह दी थी, इस चीज को आपका एवरेज जीपीए, यू आर स्टिल इन द गेम। ये डेफिनेटली, लेकिन मुझे अब ये पता नहीं है कि आपकी एनवायरनमेंट में, आप अगर कोई और फील्ड है मैं उसका भी आंसर कर सकता हूँ, लेकिन अगर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है तो इन ऑर्डर इलेक्ट्रिकल है actually। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, बहुत ही ज्यादा जॉब्स हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके पास सरप्लस एनर्जी है। और हाँ, जो है वो इंडीड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक है जिंग, XING, zing.com, यहाँ से बहुत ज्यादा हायरिंग होती है। और पाकिस्तान में लिंक्डइन काम करता है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा है, और ज्यादातर हायरिंग आपकी लिंक्डइन से होती है। तो लिंक्डइन के ऊपर आप एक बहुत अच्छी प्रोफाइल आई वुड से बनाएं, और कंपनीज में डायरेक्ट अप्लाई करें। कुछ कंपनीज हैं जिनमें मैं हमारे बहुत ज्यादा नस्टियंस फेलो बहुत ज्यादा गए हैं। इन्फिनियन उनमें से एक नाम है, इंटेल में बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में है, गूगल में है। तो आप ये जो इस तरह के बिग नेम्स हैं उसमें आप डायरेक्ट अप्लाई करें। पावर की मैं कुछ कंपनीज को जानता हूँ, जैसे 50 हर्ट्ज है, ईऑन है, एक एनरकॉन है। क्योंकि मेरी अपनी फील्ड तो नहीं है इलेक्ट्रिकल, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इसमें। तो हाँ, इनकी जॉब्स, फॉर एग्जांपल एन एनवायरमेंटल इंजीनियर को होता है कि ही must have a very good language skill, German skills, in order to get a good job. लेकिन इलेक्ट्रिकल का मैंने देखा है कि even with a very normal German, वो they get the job, because काम ज़्यादा टेक्निकल होता है, इतना वो ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं होता। तो डेफिनेटली आई वुड एनकरेज यू कि आप लिंक्डइन के ऊपर एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाओ, और मुझे ईमेल आप जरूर सेंड कर देना। मैं उसी अपने फ्रेंड से कह के कुछ कंपनी जो कि हायरिंग कर रही है कोविड में, तो मैं आपको एक लिस्ट बनवा के आपको और अली को दोनों को सेंड कर दूंगा। सही, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। हाँ, और If there is another question, please एक just क्वेश्चन unmute है, and ask. रुबाब का एक क्वेश्चन है, सैम कैन यू प्लीज गाइड जी हाउ। जी अब्दुल्ला इफ यू कुड प्लस नाउ वी सी रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आप जो आखिरी 10-12 मिनट्स हैं इसमें अगर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और साइंसेस के लिए क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं थोड़े से, और इस रुबाब के क्वेश्चन को लेके उसके बाद अगर हुसैन
पाकिस्तान के अंदर जैसे माशाल्लाह से ही वाज एट वर्किंग विद साहिवाल कोल फायर पावर प्लांट एंड ही इज ऑन स्टडी लीव। सो उसमें थोड़ा सा आप किस तरह से जॉब हंटिंग के लिए और स्कॉलरशिप के लिए भी, लेकिन जॉब हंटिंग के लिए भी आप क्या जूनियर्स को सजेशन देना चाहते हैं एनवायरमेंटलिस्ट को ओवरऑल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग के, थोड़ा सा इसके बाद काइंडली इस पे भी। जी मैं जरा रुबाब का क्वेश्चन आंसर कर दूं कि कैन यू प्लीज गाइड हाउ टू सर्च एनवायरमेंटल जॉब्स इन जर्मनी, आर देयर एनी वेबसाइट हु एडवर्टाइज फॉर हायरिंग? ऑनेस्टली ये मैंने पहले भी बताया कि एनवायरनमेंट की जॉब्स हैं, कुछ कुछ बड़ी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल GIZ है जर्मन, मैंने वहाँ पर इंटर्नशिप भी की थी यहाँ पर जर्मनी में रह के। लेकिन एनवायरमेंटल जॉब्स के लिए आपको जर्मन चाहिए, आपको अराउंड B2 जर्मन चाहिए, और B2 लेवल की जर्मन ऑनेस्टली आपको यहाँ पर रहकर ही आती है। क्योंकि ज़्यादातर एनवायरमेंटलिस्ट का ज़्यादातर काम टेक्निकल भी होता है, लेकिन जो है काम ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का भी होता है, ज़्यादा स्पीच डिलीवरिंग का भी होता है, तो इस वजह से आपको जर्मन चाहिए। तो ये पॉसिबल एनवायरमेंट केस में मैं कहूँगा कि अगर ऐसा होता है तो दैट वुड बी 1 in a billion केस कि आपको पाकिस्तान में बैठे बैठे यहाँ पर जर्मनी में जॉब मिल जाए। So that's something. So San, if you could, since we are running just out of time, we are having we are left with only 8 minutes. So if you could quickly sum up your experience in 4 to 5 minutes in Pakistan's perspective, job hunting, किस तरह से ये जो हमारे graduates अपने आप को तैयार करें, और माशाल्लाह से जिस तरह से you worked and still working with leading sort of renewable energy or sort of I won't say it renewable, sorry, with energy company. The project here is coal fire, but I am not aware they would have been working on renewable energy projects as well elsewhere in China and worldwide. So kindly, if you could share, reflect on your experience and some advices to the juniors. Number one advice, if you are graduated and you are still looking for a job, maybe 5 months, 6 months, दिल छोटा नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी, और जब आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपके लिए दो चीजें मैटर करती हैं, एक कि आपको पोस्ट क्या मिल रही है, और एक आपको कंपनी क्या मिल रही है। मतलब कुछ लोगों के लिए पोस्ट इतना मैटर नहीं करती जितनी बड़ी कंपनी मैटर करती है। तो जब मैंने अपनी साहिवाल वाली कंपनी ज्वाइन की थी तो मैं उस टाइम पर मलेशियन फर्म थी और उसमें मैं टेक्निकल मैनेजर था, और मुझे साहिवाल पावर प्लांट में ट्रेनी की पोस्ट ऑफर हुई थी, और सैलरीज में भी डिफरेंस नहीं था, सैलरीज भी सेम थी। लेकिन मैंने जो है साहिवाल पावर प्लांट को एम किया और उसको ज्वाइन किया, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि जो बड़ी इंटरप्राइजेज होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको जाके कंपनसेट कर देती हैं। इट विल टेक टाइम, 1 ईयर 2 ईयर, लेकिन जब आप ऊपर जाना शुरू होते हैं तो फिर स्काई इज द लिमिट। लेकिन जब कि आप छोटी इंटरप्राइजेज में होते हैं आप ऊपर नहीं जा सकते, और वहाँ पे मोस्टली जो आपके लिए रुकावट होती है वहाँ पे उनका कल्चर और सॉर्ट ऑफ जिसे हम कहते हैं सेट कल्चर या बॉस कल्चर, वो बहुत ज़्यादा होता है। बाकी जब आप जॉब हंटिंग कर रहे हो तो मैं आपको हमेशा कहूँगा कि आप पाकिस्तान में जो एनवायरनमेंट की जॉब्स आती हैं उनकी एक एक्सेल फाइल बनाएं। मतलब जो कंपनीज है जो एनवायरमेंटलिस्ट को हायर करती हैं उनकी एक एक्सेल फाइल बनाएं, और आप उस एक्सेल फाइल में से कंपनी शॉर्टलिस्ट करें, अपना प्रोफाइल उनके साथ शेयर करें। आपने ये नहीं कि हर हफ्ते उनके साथ अपना प्रोफाइल शेयर करना है, आप अपना अच्छा सा प्रोफाइल जिस तरह अब्दुल्ला ने कहा लिंक्डइन पे बनाएं, और एक बहुत अच्छी रेज्यूमे या CV बनाएं, उसे आप शेयर करें, और हर रोज आप 2-3 कंपनीज के साथ शेयर करें, लेकिन स्पैमिंग ना करें। मतलब 6 मंथ्स में एक दफा शेयर करें या 3 मंथ्स में एक दफा शेयर करें, मैक्सिमम 3 मंथ्स में एक दफे से ज्यादा शेयर ना करें। आप उनके साथ शेयर करें, इवन इफ देयर इज नो जॉब, आप तब भी उनके साथ अपना रेज्यूमे शेयर करें। जिस तरह आज मैं एक एग्जांपल पढ़ रहा था एक एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप में कि एक बंदे ने अपनी यूनिवर्सिटी के जो इंडस्ट्रियल लाइजन ऑफिस था उसमें 4th सेमेस्टर में CV प्लेस की थी, और ग्रेजुएट होते साथ उसको जॉब ऑफर आ गई उस टाइम की, मतलब 2 साल पहले की CV प्लेस की हुई की वजह से। तो इस तरह आप कंपनी शॉर्टलिस्ट करें, इंडस्ट्रियल लाइजन ऑफिस के साथ काम करें। हमारी कंपनीज भी नास्ट के GC के इंडस्ट्रियल लाइजन ऑफिस के साथ काम करती है, और माशाल्लाह नवीद भाई जो हैं बड़े एक्टिव हैं, वो हमें टाइम टू टाइम कहते भी रहते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। और इस तरह जो है बड़ी-बड़ी अच्छी जो कंपनीज हैं उनको शॉर्टलिस्ट करें, उन पर CV पोस्ट करें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। Thank you so much, San.
summed up really in a nice way and in a very coherent and concise manner. I'm really thankful to making sort of this session happening, and Abdullah and you coordinating. Or let me say to the audience and audience that Abdullah was busy as well, and Hussain and we was planning the session on Saturday, I think, और फिर हमने इसको Yes. फ्राइडे पे पुश किया, और फ्राइडे से फिर हमने इसको थर्सडे पे पुश किया, और थर्सडे पे हमारा एक सेशन पहले ही था, तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की हुसैन एंड अब्दुल्ला से, एंड दे वर सो काइंड माशाल्लाह से दैट दे बोथ एग्रीड, और हमने ये सेशन आज कंडक्ट किया है. सो थैंक यू सो मच आप दोनों का. और फॉर मी IESC फैमिली इज समथिंग वन बिग फैमिली, और आई रियली फील प्लेयर इन सॉर्ट ऑफ IESC फैमिली कंपनी. तो आजकल ज़रा ये था कि कोविड-19 की वजह से होम कमिंग नहीं थी, तो चलो वर्चुअल होम कमिंग ही सही, इसमें और दूसरों को भी बेनिफिट हो गया. सो थैंक यू सो मच. तो ये जो सेशन था ये सैटरडे को प्रपोज किया गया था, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे कुछ होता वेंसडे तक आ गया. सो आई नो चीज़ें बड़ी वहाँ पे मुश्किल होती है मैनेज करना व्हेन यू आर लिविंग अब्रॉड, और स्पेशली आजकल के डेज के अंदर कोविड-19 में. तो वंस अगेन आई एम एक्सटेंड माय थैंक्स, एंड इट वाज रियली हेल्पफुल सेशन. सो आई थिंक मेरे ख्याल से क्वेश्चन और नहीं है शायद ना. सो थैंक्स वंस जी अगेन. अस्सलाम वालेकुम. जी तला. वालेकुम सलाम. जी हाँ. तला भाई. बस पहले तो मैं नवीद भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है हमारे यंग्स और जूनियर्स के लिए कि वो यहाँ से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं, एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं. यहाँ हमारे अपने सीनियर्स हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जॉब कर रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और डिफरेंट स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं. पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे. दूसरा मैं दूसरा यहाँ पे ये पॉइंट करूँगा. मैं असल में हुसैन और अब्दुल्ला दोनों का क्लास फेलो भी रह चुका हूँ. तो मैं एक बात कहूँगा अब्दुल्ला के बारे में कि इसने काफ़ी एग्जांपल सेट की है कि जो जीपीए वाला पॉइंट होता है कि जीपीए मैटर नहीं करता होता आपके फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, बल्कि हार्डवर्क करता होता है. जिस तरह इसने मतलब चीज़ों को अवेल किया, अप्स एंड डाउन आए इसके कैरियर में, लेकिन इसने काफ़ी उस चीज़ से पॉजिटिव लिया उस चीज़ को और अल्लाह ताला पे बिलीव रखा. माशाल्लाह आज काफ़ी हम सब से माशाल्लाह जितने हमारी क्लास के ब्राइट स्टूडेंट्स हैं सबसे आगे माशाल्लाह है, और डैड स्कॉलरशिप के ऊपर अवेल कर रहा है और माशाल्लाह एजुकेशन हासिल कर रहा है. आई प्राउड ऑफ यू. दूसरा हुसैन कामरान ने अपनी प्रोफेशनल कैरियर की बेसिस के ऊपर काफ़ी अचीवमेंट्स ली हुई हैं और अब माशाल्लाह डैड स्कॉलरशिप से चीज़ें सीख रहा है और बल्कि हमें भी मोटिवेट करता है कि आप भी आओ, ज्वाइन करो, यहाँ पे काफ़ी कुछ है. तो मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने टाइम दिया, और नवीद भाई आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया. हमें सो नाइस ऑफ दोनों यू. को सुनने का मौका मिला. तला सो नाइस ऑफ यू. आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपने पूरा सेशन तला ने अटेंड किया. अब्दुल्ला एंड हुसैन पूरा सेशन. ये अब्दुल्ला की मोहब्बत आई थिंक. एंड अब्दुल्ला वाज वेरी एक्टिव माशाल्लाह से. पूरे नस्ट के इवेंट्स के अंदर अब्दुल्ला ने फोटोग्राफी करनी और फिर बड़ी कमाल की फोटोग्राफी करनी. एंड देन अब्दुल्ला ने माशाल्लाह से जो है वो अपना बिजनेस भी किया, गाड़ियों का माशाल्लाह इंपोर्ट का बिजनेस था. तो इज अ वर्सटाइल कैरेक्टर माशाल्लाह से अब्दुल्ला. तो हाँ ये तो है, ये माशाल्लाह ये पॉइंट तो आपका वैलिड है. और असल में चीज़ ये होती है जो मतलब जो अच्छे लोग होते हैं उनको अच्छे लोग ही मिलते हैं. अब्दुल्ला क्योंकि उसने काम किया ऐसे बाय नेचर इतना है, काफ़ी कोऑपरेटिव है, हेल्पिंग है, हम सबको साथ साथ लेके चलता है. तो इसके साथ साथ इसकी वजह से हम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे अंदर भी चीज़ें इनकलकेट हो रही हैं. तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका दोबारा भी for the kind words नवीद भाई Thank you and जी, तलहा. thank you. बाकी ऑडियंस के लिए अब मेरे ख्याल से टाइम शॉर्ट है. मैं हाँ, सिर्फ बस इतना खत्म हो कहूंगा कि रहा मेरा ईमेल है, आपको किसी भी किस्म का हो ये क्वेश्चन दोनों जस्ट ऑडियंस आप फील फ्री काइंडली टू ईमेल राइट नोट हेलो कर सर. लें. कामरान एंड अब्दुल्ला का. हेलो सर. इट्स अबाउट. हेलो सर. जी जल्दी बता दे, क्वेश्चन खत्म होने वाला टाइम. हेलो सर, मेरा एक छोटा सा इररिलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर कि पीएचडी अच्छी है या सीएसएस, इस दोनों में मतलब सजेशन चाहता हूँ. अपने एम्स पे डिपेंड करता है, आपका क्या गोल है उसको फॉलो करें. काइंडली ये ईमेल आईडीज हैं, और वंस अगेन लेकिन थैंक यू सो मच जी अब्दुल्ला एंड हुसैन. और काइंडली ये ईमेल आईडी है. मीटिंग खत्म होने वाली है तो आप